गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है। और अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तक कर लिया था। एक बार मैं आपको वापस से वो फॉर्मेट दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हमने ये पोर्शन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिया है। आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक खर्चा होता है फर्म के लिए। जो फर्म है हमारी पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए खर्चा होता है। पार्टनर्स को ये ब्याज मिलता है। पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट में उनको इंटरेस्ट मिलता है। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तीन केसेस होते हैं। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइंड अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने पहले बताया था कि अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट विल बी पेड। अगर साइलेंट है तो भी नो इंटरेस्ट विल बी पेड। When the partnership agreement provides for the interest in capital to be created interest charge और appropriation। पहला अगर चार्ज लेते हैं तब क्या होगा और दूसरा अगर appropriation लेते हैं तब क्या होगा। अगर चार्ज लेते हैं, if it is treated as charge, in that case पूरा का पूरा interest on capital आपको पे करना है, चाहे कंपनी या फर्म लॉस में हो चाहे प्रॉफिट में हो। तो interest on capital will be allowed only when there is a profit. In case of loss, no interest will be allowed on capital. Okay, when the profit before interest is equal to or more than the amount of interest, full interest will be allowed. ठीक है। When the profit before interest is less than interest itself, interest will be restricted to the amount of the profit. Hence, profit will be distributed in the ratio interest on capital of each partner. Okay. Then third case is when the partnership agreement provides for treating interest as a charge. यहाँ पे हमारे दो थे, appropriation और charge. Charge is here. अगर वो चार्ज लेता है, एज अ चार्ज लेता है, फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट पे करना है। प्लीज रिमाइंड दिस, अगर इंटरेस्ट इज टेकन एज अ चार्ज, अगर उसको चार्ज लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टेकन एज अ चार्ज, देन यू हैव टू पे फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स। However, if it is treated as appropriation, then in that case, three conditions prevail over. If there is a loss, no interest will be paid. If there is a sufficient amount of profit to pay the interest to partners, in that case, you can pay full amount of interest to the partners. Whereas, if the profit is restricted, if the profit is limited up to the interest, then you have to pay. If the profit is limited, in that case, interest is to be paid up to a restricted amount up to the profit only. Okay, these are the scenarios in interest on capital, which we practice in practical terms also. So the thing is charge. Charge means क्या होता है? If anything, any expense is to be treated as charge, you have to pay it in full amount. You have to pay it in full amount. Okay. Appropriation में you have to just appropriate the amount. You have to just appropriate the amount which is available to us. सपोज करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हमारा आता है, ए और बी पार्टनर्स को 25-25 हज़ार रुपये देकर 50,000 रुपये आता है, और कंपनी का प्रॉफिट अगर 40,000 है, तो हम क्या करेंगे? तो इन दैट केस अगर वो एप्रोप्रिएशन है तो हमें क्या करना होगा? हमें सिर्फ 20-20 हज़ार रुपये देने होंगे, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट ही अवेलेबल कितने का है? 40,000 रुपये। हमारे पास प्रॉफिट एक्सेसिव नहीं है। However, in that similar case, अगर वो कह देता है interest on capital is to be charged, is to be treated as a charge. If it is treated as charge, in that case, you have to pay full amount of interest on capital, irrespective of whether you are suffering from loss or profit. In that case, same case में दे रहा हूँ 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, 25,000 ए को 25,000 बी को, और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट 40,000 का है, तो हम दिखाएंगे 40,000 एज ए नेट प्रॉफिट, then 25,000 to A, 25,000 to B as interest on capital, and 10,000 का जो लॉस बचेगा, 10,000 का जो लॉस आएगा वो हमारा लॉस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट विल शो एज अ लॉस ऑन एप्रोप्रिएशन। एक 30 सेकेंड क्वेश्चन नंबर 30 सेकेंड फ्रॉम माई बुक, वी विल प्रैक्टिस इट टू एक्सपीरियंस हाउ इट विल शो इन द अकाउंट्स। AB are the partner sharing profit and loss in the ratio of 3:2. 3:2 with capital. So we are discussing due to some technical problem, class will discontinue. We continue करते हैं. Illustration number 32.
इलस्ट्रेशन नंबर 32 एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बताया उसके अकॉर्डिंगली। तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 32 में सारी चीज़ें देखेंगे जो हमने यहाँ पे अपवर्ड्स डिस्कस किया था, ठीक है। तो पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, सारे केसेस देख लेते हैं, देन इसके बाद आगे कैरी ऑन करते हैं। ABR the partner sharing profit loss in the ratio of 3:2 with a capital of 2 lakh, 1 lakh, respectively show the distribution of profit in each of the following alternate cases. Case number 1 is if the partnership deed is silent as the interest on capital and profit for the year is unknown. देखिए interest on capital partnership deed silent है, silent partnership deed is silent about the interest on capital, whether it should be paid to the partners or not. So in that case simply we learn टू थिंग्स। एक तो अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो भी हम क्या करते थे, वो 5 रूल्स थे। 5 रूल्स में से पहला रूल क्या था, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो प्रॉफिट शेयर रेशियो इज इक्वल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 6%। तो उसके हिसाब से भी क्या होता था, उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा गया है। और यहाँ पे भी वही कह रहा है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना चाहिए। तो वही यहाँ पे ट्रिगर ओवर करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फर्स्ट केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट शुड नॉट बी पेड ऑफ। सेकंड केस नंबर 2, if the partnership provides for interest on capital at the rate 8% per annum and the loss for the year is unknown. Here nothing has specified whether interest on capital is to be taken as charge or appropriation, so we consider it as an appropriation. जब तक कि वो मेंशन नहीं करता कि इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, तब तक हम उसको चार्ज लेकर नहीं चल सकते, तब तक हम उसको एप्रोप्रिएशन लेकर चलेंगे। एप्रोप्रिएशन में क्या केस था, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है तभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल देना है। अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड यानी कम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है तो आपको जितना प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो वही केसेस हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एंड द फर्म सफरिंग फ्रॉम लॉस ऑफ 50,000। तो अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है इन केस ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का केस है ये, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफाइड है। अगर यहाँ पे चार्ज स्पेसिफाइड होता तो ये एप्रोप्रिएशन के केस देता, आपका चार्ज का केस होता। सो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है। फर्स्ट केस में नहीं देना है क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सेकंड केस में नहीं देना है क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन एंड फर्म इज सफरिंग फ्रॉम लॉस। Second, third case of the partnership deed provides for the interest on capital at 8% per annum and profit for the year is 50,000। यहाँ पे सिंपली वो कह रहा है कि 50,000 का प्रॉफिट है फर्म का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जा रहा है। कैपिटल का अमाउंट्स क्या क्या थे, 2 लाख ए का और 1 लाख बी का। तो ए का 8% के हिसाब से निकालते हैं तो 16,000 और बी का 8% के हिसाब से निकालते हैं तो 8,000। दोनों का टोटल सम अप कर देते हैं 24,000। रेस्ट ऑफ अमाउंट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इज 26,000। You can calculate it 50,000 minus 24,000 as the interest on capital. 16,000 plus 8,000 equal to 24,000. 24,000 minus 50,000 it will fetch you 26,000 rupees. 26,000 is to be distributed between the partners as a profit. Third case की बात करते हैं, the partnership deed provides for the interest on capital 8% per annum and the profit for the year is 15,000. Here also it is treated as appropriation and restricted profit. This is the third case. Profit is restricted, profit is limited. You have to distribute same amount as a interest on capital up to 15,000 only. तो 15,000 आपको किस तरीके से है, सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में था, 2:1 में। कैसे 2:1 में, 16,000 ए को दे रहे थे, 8,000 बी को दे रहे थे। इन दोनों का रेशियो अगर देखा जाए तो 2:1 आ रहा है। दैट्स व्हाई 2:1 में 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो गिव यू 10,000 एंड 5,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ केस। एंड फिफ्थ केस की बात करते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द 8% per annum even if it involves loss, please note down or underline this. So please mark these words. It involves the firm in loss 8% even if it involves the firm in loss। यानी कि वो कह रहा है कि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। तो या तो ये वर्ड्स लिखेगा सिंपल वर्ड्स में, इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। सो हमारे क्या है, आजकल के जो क्वेश्चंस हैं उसमें होता सिंपली ये है कि आजकल के क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, आजकल के क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं।
तो कॉम्प्लिकेशन का ही एक नाम ये भी है कि कॉम्प्लिकेशन करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। सिंपली यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेस्ट इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो हम सीधा पकड़ लेते हैं। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, दैट मींस वो सिंपली कहना चाहता है कि इंटरेस्ट कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। तो ये आपका फिफ्थ केस है। तो इस केस में क्या होगा, आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैपिटल देना है, ठीक है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट कैपिटल कितना था आपका 16,000 और 8,000 टोटल 24,000। आपके पास प्रॉफिट है कितना 15,000 का, तो आपको कितने का लॉस हो रहा है 9,000 का। तो 9,000 का लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सिंपल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे क्या दे रखा है 3:2 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन 3:2, ठीक है। तो हम अब एक एक करके सारे केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करने के बाद फिर कंक्लूजन पे भी कराते हैं, ठीक है। पहले केस में हमने पढ़ा था इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना है, ठीक है। पहले केस में आपने देखा प्रॉफिट इतने का है, इंटरेस्ट कैपिटल नहीं देना है, सीधा का सीधा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रॉफिट 3:2 के रेशियो में, क्लियर। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट कैपिटल प्रोवाइड्स फर्म इज सफरिंग फ्रॉम लॉस, फर्म को लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो लॉस का बैलेंस, जैसे प्रॉफिट का बैलेंस इधर है तो लॉस का बैलेंस इधर आएगा। और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन जो होता है, तो लॉस के केस में भी हम इंटरेस्ट कैपिटल दे नहीं सकते, तो हमने इंटरेस्ट कैपिटल नहीं दिया और सीधा का सीधा एक्सपेंस जो भी लॉस था वो ए और बी पार्टीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। थर्ड केस में आते हैं तो पार्टनरशिप भी प्रोवाइड्स होता है इंटरेस्ट कैपिटल। तो इसमें इस केस में क्या हो रहा था कि इंटरेस्ट कैपिटल हम 24,000 रुपये दे रहे थे, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास 26,000 का बच रहा था, जो कि ए और बी पार्टनर्स डिवाइड कर ले रहे थे आपस में 3:2 के रेशियो में। तो प्रॉफिट 50,000 का आया और यहाँ पे 24,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ और उसके बाद प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3:2 के केस में, ठीक है। थर्ड फोर्थ केस आता है कि पार्टनरशिप भी प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द 15,000 ही प्रॉफिट है, नथिंग हैज स्पेसिफाइड अबाउट द चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन है, तो हम एप्रोप्रिएशन मान के चलेंगे। एप्रोप्रिएशन मान के चलते हैं तो हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट कैपिटल के अमाउंट को किस रेशियो में, कहाँ तक, प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट तक। तो अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास 15,000 रुपये है, इंटरेस्ट कैपिटल का हमारे पास एक्सपेंस कितना हो जा रहा है 24,000, तो 24,000 का इंटरेस्ट कैपिटल अगर हो जा रहा है तो उसी रेशियो में जिसमें इंटरेस्ट कैपिटल का रेशियो है उसी रेशियो में हमें इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है। तो इंटरेस्ट कैपिटल का रेशियो क्या है 16,000 और 8,000 यानी कि 2:1, ठीक, 2:1। तो हमें इसको 2:1 में करना है। डोंट कंफ्यूज कि हमने इसको 3:2 में डिवाइड करना है, नहीं 3:2 में डिवाइड नहीं करना है। हमारे पास जो हमारे पास अवेलेबल रेशियो रहेगा इंटरेस्ट कैपिटल का, दोनों के इंटरेस्ट कैपिटल फुल फ्लेज इंटरेस्ट कैपिटल को आप रख दीजिए, जो रेशियोज निकल के आएंगे उस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे। तो रेशियोज क्या निकल के आए थे उसके, एक का 15,000, एक का 16,000 और एक का 8,000, 2:1। 2:1 के रेशियो में अगर हम इसको करते हुए क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी 2:1 के उसमें कर देंगे क्या आंसर आ जाएगा 10,000 और 5,000 रुपीज, क्लियर। देन आता है इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट कैपिटल, if the partnership deed provides for the interest in capital 8% per annum, even if it was loss 15,000 रुपये का प्रॉफिट दे रखा है और हमारे पास इंटरेस्ट इन कैपिटल एज अ चार्ज यूज हो रहा है, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना हो गया हमारे पास 24,000 का। 24,000 का इंटरेस्ट इन कैपिटल दे दिया, 15,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, 9,000 का लॉस जो हो रहा है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। प्लीज सी दिस केस नंबर 5। केस नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 15,000 का प्रॉफिट था, इंटरेस्ट कैपिटल में फुल दे दिया 24,000 का, जो बैलेंस 60,000 का लॉस हो तो आपस में डिवाइड होगा, ठीक। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और लेकर चलता हूँ, ठीक है। इससे पहले कि मैं दूसरा क्वेश्चन आपके साथ लेकर चलूँ, प्लीज़ मेरे को एक चीज़ आप ये कंफर्म कराइए, ग्रुप बना हुआ है स्कूल क्लास 12 का, मैं भी उसमें एडेड हूँ और आप लोगों से प्लीज़ कन्वे भी किया गया है कि आप लोग उसमें टेक्स्ट करिए, मैसेजेस करिए अपने डाउट, और मैं भी आपसे गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अपने उसमें आप अपने क्वेरीज, क्वेश्चंस जो भी XYZ आपके रिगार्डिंग फ्यूचर, रिगार्डिंग अभी जो क्लासेस हो रही है उसके कुछ भी अगर क्वेरीज हैं तो प्लीज़ उसमें पूछिए, मुझे भी मज़ा आएगा उसके जवाब देने में, ठीक है। और एक इंट्रैक्शन, एक हेल्दी इंट्रैक्शन होगा हमारे और आपके बीच में, तो क्लास भी इंजॉयबल होगी, ठीक है।
तो यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपको क्या दिया हुआ है, ए बी कॉन्ट्रीब्यूट्स 5 लाख एंड 3 लाख एज अ कैपिटल respectively by way of capital on which they agree to allow interest at 6% per annum. Their respective share of profit is paid to do, and the profit for the year is 40,000 before allowing interest on capital. Prepare the necessary bonds and allocate interest on capital. ठीक है, तो interest on capital allocate करना है। दो तरीके से दिया होगा, when partnership deed is silent in trading interest as a charge or appropriation. अगर उसके लिए साइलेंट हो गई है, साइलेंट हो गई तो जाहिर सी बात है एप्रोप्रिएशन की तरह चार्ज करना, उसका एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना। ठीक, अब यहाँ पे इंटरेस्ट पहले निकाल लीजिए। इंटरेस्ट निकालते हैं 5 लाख के ऊपर 6% अगर निकालते हैं तो कितना आ गया 30,000, क्लियर। और 3 लाख के ऊपर निकालते हैं 6% तो 18,000, 30 + 18 48, प्रॉफिट है 40,000। तो हमारे पास 30,000 आ गया, 18,000 आ गया, 30 और 18 आ गया। 30 और 18 का एक रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम एप्रोप्रिएशन है, हमारे पास प्रॉफिट कितना है सिर्फ 40 और इंटरेस्ट कैपिटल 48 है। 48 और 40 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन की तरह चार्ज कर लेंगे। क्वेश्चन है साइलेंट अबाउट, ठीक है, कि उसको एप्रोप्रिएशन की तरह यूज़ करना है कि चार्ज की तरह यूज़ करना है। तो इन केस एप्रोप्रिएशन और चार्ज में साइलेंसी आती है तो हम एप्रोप्रिएशन को प्रायोरिटी देते हैं। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 30 + 30 और 18, 30 और 18 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, अगर 6 को दोनों से कॉमन 6 से 5 और 3, 5 3 आएगा, 5:3। तो 5:3 का जो रेशियो है उसको हम 40,000 में डिवाइड करें। 5:3 आपका रेशियो क्या है 8, यानी कि 8 से डिवाइड करने का है 5, यानी 25,000 और 25,000 और आपका 3 × 5 दैट इज 15,000। ठीक है, 25 और 15 का आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन के अंदर देखें, सोल्यूशन किस तरीके से किया 40,000 और उसके बाद इंटरेस्ट कैपिटल 25,000 और 15,000 40,000। सेम क्वेश्चन में अगर वेन द पार्टनरशिप एग्रीड दैट इंटरेस्ट शुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट के अलावा, सेम उसने फिर से बोल दिया कि चार्ज की तरह यूज़ करेंगे। अगर चार्ज की तरह यूज़ करेंगे, तो फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे। फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करेंगे तो 8,000 का लॉस आएगा, 8,000 का लॉस आएगा, 8,000 लॉस। देयर वन पार्टनर्स किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पूरा पेमेंट कर दिया, 8,000 का लॉस है, 8,000 का लॉस 3:2 के रेशियो में डिवाइड हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 भी लेकर चलते हैं, मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 34 भी कर लेता हूँ। ठीक, या 34 भी मेरे ख्याल में सिमिलर है, 34 का आप छोड़ देते हैं। 34 के बाद आपके पास कितने 35 क्वेश्चन नंबर 35 है और उसके अलावा 36 है और उसके अलावा तो मैं आपके साथ पहले 36 लेके चलता हूँ, फिर अगर टाइम बचा तो मैं 34 या 35 में भी कुछ कर लूँगा। अदरवाइज ये 34 35 क्वेश्चन नंबर आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोलता है, ABC started a business in a partnership, A contributes 50,000 for the whole year, B produced 40,000 at the first and increased it to 46,000। पहले उसने 40,000 और उसने फिर इंक्रीज कर दिया 46,000 तक at the end of 4 month, but withdraw 16,000 at the end of 6-9 month। C interest 80,000 invest 80,000 at the first, but withdraw 20,000 at the end of 5 months। Firm earned a profit of 23,750 during the year। You are required to show the division of profit basis of capital employed by each partners during the year। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल उसने नहीं दिया, उसने मतलब शेयर कैपिटल उसने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो कुछ नहीं दिया, उसने बोल दिया सीधा इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से। आप बताइए इफेक्टिव कैपिटल जो उसके हिसाब से आपको बताना है। तो पहले भाई जो ए है, मिस्टर ए है, उन्होंने क्या किया 50,000 पूरे साल के लिए लगा रहे थे, उनकी कैपिटल कितनी होगी 6 लाख रुपये की। ठीक, उन्होंने 50,000 × 12 6 लाख रुपये हो गए। ठीक है, दूसरे भाई बी हैं जिन्होंने क्या किया 40,000 पहले इंट्रोड्यूस किया और इंक्रीज कर दिया 46,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ। 4 महीने के आखिरी में उन्होंने 46,000 तक कर लिया, 4 महीने के लिए उन्होंने कितना पैसा लगाया बिजनेस में 40,000। तो 40,000 फॉर 4 मंथ्स मल्टीप्लाई करके एक आंसर है 1,60,000। फिर 46,000 हो गया तो 4 महीने बाद उसने 46 कर दिया। 46 कब तक किया, विड्रॉ कर लिया 16,000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ।
चौथे महीने के अंत में उसने बढ़ाया 6,000 रुपये, उसके बाद उसने 9th मंथ के एंड में फिर से विड्रॉ कर लिया, यानी कि गैप कितना 46,000 आपका कितने टाइम तक रहा, 5 महीने के लिए। 46,000 5 महीने के लिए रहा तो उसका मल्टीप्लिकेशन आ गया, क्लियर। उसके बाद फिर आपका 30,000 रेस्ट, 46 में से अगर 16 उसने विड्रॉ कर लिया तो बचा कितना, 30,000। 30,000 4 महीने यहाँ पे कंज्यूम हो गए, 5 महीने यहाँ कंज्यूम हो गए, तो 12 में से 4 + 5 9 हटाकर कितने बचे, 3 मंथ के लिए रेस्ट अमाउंट रहा। रेस्ट अमाउंट 3 महीने के लिए रहा तो वो कितना रहा, 30,000। 30,000 × 3 90,000। तो इनका टोटल इफेक्टिव कैपिटल कितना हो गया, 4,80,000। ए का कितना था, 6 लाख, इनका कितना हुआ, 4,80,000। इसी तरह सी का देख लेते हैं। सी ने क्या किया, शुरुआत में इन्वेस्ट किया 80,000 और द एंड ऑफ 5 मंथ के एंड पर उसने 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिया, काम कर लिया। 80 कितने महीने के लिए लगा रहा, 5 महीने के लिए। 5 महीने के लिए 80 लगा रहा तो उसको कितना हो गया, 80 × 5 4 लाख रुपये, ठीक है। और उसके बाद रिमेनिंग 12 में से अगर 5 महीने हट जाते हैं तो बचे 7 महीने। 7 महीने के लिए उसने कितना पैसा लगाया, 80 में से 30 हटा लिए, 60,000। 60,000 7 महीने के लिए, तो 7 × 8 दैट इज 7 × 6 6 × 7 सॉरी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 मंथ्स, ठीक है। 60,000 रुपये क्योंकि 80 में से 20 निकाल लिया उसने तो 60,000 बचे, और 12 में से 5 यहाँ से लगे थे, 7 महीने के लिए बचा। 7 महीने के लिए 60,000 लगेगा, वो टोटल आ गया आपका 4,20,000। टोटल आपकी कैपिटल कितनी होगी, 8,20,000 की। इफेक्टिव कैपिटल क्या क्या होगी, 6 लाख ए की और 4,80 बी की और 8,20 सी की। इसका एक रेशियो निकाल देते हैं, इस रेशियो में पुट करेंगे। इसका एक फ्रीक्वेंसी एक और छोटा सेंटर है 30, 24 और 41, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इसमें इंटरेस्ट एंड कैपिटल के बारे में कुछ बात नहीं होती, इसमें सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल निकालना था। तो इफेक्टिव कैपिटल इस तरीके से निकालते हैं, बाई मल्टीप्लाई विद द मंथ्स, ठीक है। उसको मंथ से मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव कैपिटल निकाल दिया। इफेक्टिव कैपिटल निकालने के बाद उस रेशियो में इसको एलोकेट कर दिया प्रॉफिट, ठीक। अभी जो हमारे नेक्स्ट आप बाकी इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट्स, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चलेगा वो चलेगा एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर हम इसको करने में मज़ा आएगा। बाकी इसके क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस करिएगा तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगी और चीज़ें। फिर से मैं एक बार इलैबोरेट कर देता हूँ, आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, एक पूरे क्लास को सम अप कर देता हूँ। इन केस जैसे बाहर कोई किसी से कुछ मिस हो जाता है तो एक बार इसको इलैबोरेट कर देता हूँ। सबसे पहला केस दिया है कि इंटरेस्ट आपका जो पार्टनरशिप डीड है वो साइलेंट है। साइलेंट के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं मिलना चाहिए, नहीं लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा केस आता है अकोमोडेशन और चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा है तो कैसे कैसे डील करना है। लॉस है तो इंटरेस्ट और कैपिटल नहीं देना है। प्रॉफिट अगर सफिशिएंट है मोर देन इंटरेस्ट और कैपिटल तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट और कैपिटल दे देना है। प्रॉफिट अगर कम है, इंटरेस्ट और कैपिटल से भी कम है, इन दैट केस जो इंटरेस्ट और कैपिटल के रेशियो उसी रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपस में। और अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये कह देता है कि इंटरेस्ट इज टू बी टेकन एज अ चार्ज, तो अगर चार्ज की तरह लेते हैं तो इन दैट केस फुल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड इन दैट केस, ठीक है। तो पूरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देंगे उसके बाद फिर हो। तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करिए और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।